This conference will now be recorded. Perimeters and areas of simple and closed figures, circumference and the area of a circle, area of a circular path, that is ring, a sector of a circle and its central angle, major and minor sectors, segment of a circle, major and minor segments. Circumference of a circle is 2 pi r and area of a circle pi r square, where r is the radius of the circle. Area of the circular path formed by two concentric circles of radii r1 and r2, where r1 is greater than r2, is equal to pi r1 square minus pi r2 square is equal to pi bracket r1 square minus r2 square. Area of a sector of a circle of radius r with central angle theta is equal to theta by 360 into pi r square, where theta is measured in degrees. Length of the arc of the sector. Read. So should I read? Okay. Yeah. Length of the arc of the sector of a circle of radius r with central angle theta is equal to theta by 360 into 2 pi r, where theta is measured in degrees. Area of the minor segment APB of the circle in figure 11.1 is equal to area of sector of AOPB and area of AOB. Area of the major sector of a circle of radius r is equal to pi r square minus area of corresponding minor sector. Very good. यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है क्या? अगर आपने क्लास में पढ़ लिया है, ये जितने पॉइंट्स एक एक करके कार्तिका ने पढ़े वो सबको पता है, या किसी पॉइंट पे डाउट है तो सर? यस सर, क्लियर है सारे पॉइंट्स? Sir, ये area of circular path formed by, excuse me sir. Yeah, please tell me. Area of circular path sir, the formed by second point, can you explain once? Yeah, I'm explaining second point. Yes, Listen, ये आपके पास ऐसे दो सर्कल हैं, कंसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर सेम है, ठीक है? तो क्या करते हैं, ये पाथ अगर आपको निकालना है तो क्या करना चाहिए? आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Radius 1 is greater than the radius 2. R1 is larger than the R2. So it's simply outer area minus inner area. Is it clear, that path? That point is clear or not? Yes, sir. Okay, fine. Now let's see the next Yes, point. Sir. The next point is next point पढ़िए कार्तिका। Area of the major segment of a circle of radius r is equal to pi r square minus area of corresponding minor segment. So unless stated otherwise, the value of pi is taken as 22/7. तो आप लोगों को ये समझ में आता है कि सेगमेंट क्या होते हैं और सेक्टर क्या होता है? मेजर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है? सेक्टर क्या होता है? Sector is a part of circle, but what about a segment? This is the area enclosed by chord and circle. Area enclosed between a chord and a circle. Okay. तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें मेरे ख्याल से अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पाई की वैल्यू 22/7 जो होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जहां पे इंस्ट्रक्शन रहेगा वैसा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? Multiple choice questions we are going to solve. Avdesh Agrawal. Yes, sir. Please read the sample question 1. Sample question 1. If the area of a circle is 154 centimeters square, then its perimeter is. Okay, area of circle क्या होता है? कैसे? pi r square कितना होता है? 154, करेक्ट? अभी बताओ रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है? 154 डिवाइडेड बाई पाई, पाई इज 7, 22/7, तो ये आपका हो जाएगा 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 7 154 होता है। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है? रेडियस आ रहा है आपका 7, ये समझ में आया क्या?
Radius is 7 here. You have to find the Okay. perimeter. Perimeter is 2 pi r. So what is 2 pi r? Sir, 2 times 44 centimeters. Yeah, exactly. 44 centimeters is the right answer. समझ में आ रहा है? Example number 2, sample question number 2 पढ़ना है आपको. Naisha, you read the question. If theta is the angle in degrees of a sector of a circle of radius, then the area of sector is. Area of sector आपको पता लगाना है. Central angle दिया हुआ है क्या? Theta is called central angle. सेक्टर का मतलब क्या हुआ? सेक्टर का मतलब क्या हुआ? ये पूरा एरिया होगा. कौन सा फॉर्मूला सही है? इसके लिए करते क्या है, हम लोग रेशियो निकालते हैं. थीटा और 360 का रेशियो निकालते हैं और साथ में क्या कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर कर देते हैं. अगर थीटा 180 होगा तो हाफ हो जाएगा. अगर थीटा 90 होगा तो 1/4 हो जाएगा. लाइकवाइज. तो बस ये रेशियो याद रखना है थीटा और 360 का. क्लियर है क्या? पाई आर स्क्वायर तो एरिया का एरिया होता ही है. अगर थीटा 360 हो गया तो 1 हो जाएगा और पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सर्कल में. सेक्टर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो इसीलिए वो रेशियो निकाला जाता है. आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन ए होगा. क्लियर है क्या? 11.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. Avdesh, please read the question. Yes, sir. If the sum of the areas of two circles with radii r1 and r2 is equal to the area of a circle of radius r, then, sir, shall I read the options? Yeah, read the options. Then option A, r1 plus r2 equals to r. Option D, r1 square plus r2 square equals to r square. Option C, r1 plus r2 is greater than r. Option D, r1 square plus r2 square is greater than r. Okay, please explain the question, Avdesh. Sir, over here, the question, the meaning of the question is that there are two circles whose radius are r1 and r2, and the sum of its areas is equal to the area of r of the circle with radius r. Okay, एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ. तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे? क्वेश्चन समझ में अगर आपको आया हो तो विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई? कि पाई आर स्क्वायर वाला जो एरिया है वो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर के इक्वल है. Square equals to pi r square. तो रिलेशन क्या आ रहा है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. विच ऑप्शन इज करेक्ट? r1 square plus r2 square. Sir, D. D is right answer. Okay, question number 2 पढ़िए. Kartika Dinesh, please you read the question. Second, if the sum of the circumference of two circles with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, then A, r1 plus r2 is equal to r, B, r1 plus r2 is greater than r, C, r1 plus r2 is less than r, D, nothing definite can be said about the relation among r1, r2 and r. देखो पहला क्वेश्चन सम ऑफ एरिया के बारे में था. अभी सेकंड क्वेश्चन किसके बारे में? सम ऑफ पेरीमीटर है, सम ऑफ सर्कमफेरेंस. फॉर्मूला क्या यूज होगा कार्तिका बताइए? 2 पाई आर 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2. ये समझ में आ रहा है? ये रिलेशन समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, आंसर sir. क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. गुड. चीजें समझ में आ रही बेटा? दोनों क्वेश्चन समझ में आया है क्या? Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? यस, आयशा प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. नायशा. If the circumference of a circle and the perimeter of a square are equal, then A, area of circle is equal to area of square, B, area of circle is greater than area of square,
C. Area of circle is less than area of square. D. Nothing definite can be said about the relation between the areas of circle and square. Okay, please explain the question. So the so it is given that circumference of a circle and the perimeter of a square is equal. That is 2 pi r equal to r square. I mean 4r. Okay, 4a ऐसा कर लेते हैं, ये समझ में आ रहा है? Yes. एरियाज क्या होंगे? ये आ रहा है पाई आर स्क्वायर आएगा और ये आपका ए स्क्वायर आएगा। तो दोनों पेरीमीटर अगर इक्वल है तो ए क्या होगा, ये बताया जा सकता है क्या? अगर पेरीमीटर इक्वल है तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल हो सकता है क्या? क्या कंडीशन हो सकती है? पेरीमीटर के इक्वल होने से और एरिया से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये कैसे अप्रोच करेंगे? 2 पाई आर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, व्हाट वी कैन डू? नाइशा प्लीज टेल मी। ए की वैल्यू शिफ्ट कर सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? व्हाट इज ए? Yes, पाई sir. बाई 2 Pi r by पाई आर बाई 2। ओके, पाई आर बाई 2 को अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर में? देखो ये पाई आर स्क्वायर तो तुम्हारा एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 आएगा। ये समझ में आ रहा है? by 4. ओके, कंपेयर करिए पाई स्क्वायर तो पाई यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 4 है। क्या सिचुएशन हो रहा है? कंपेयर कर पा रहे हैं आप? एरिया ऑफ स्क्वायर इज पाई आर स्क्वायर बट एरिया ऑफ स्क्वायर इज एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर बट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ रहा है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकाला हमने, बोलिए? Sir, pi square r square by I square r square by 4. ये चीज एक्स्ट्रा, ये समझ में आ रहा है? by बस ये 4. बताइए इसका Yes, रेशियो sir. क्या होता है? पाई बाई 4 का रेशियो क्या होता है? इज इट लेस देन 1 और मोर देन 1? Sir, it will be देखो पाई जो होता less है than 1. 22/7 Less है, than 1, sir. 22/8 आ रहा है, दिस इज लेस देन 1 है, तो ये पाई आर स्क्वायर क्या होना चाहिए? कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा? अभी कंपेयर करके बताओ, व्हिच वन इज स्मॉलर एंड व्हिच वन इज ग्रेटर? बिकॉज़ ये रेशियो इज लेस। Pi r square is greater. Area of एरिया circle. ऑफ सर्कल इज मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट है? कार्तिका? No, sir. ओके ओके फाइन। अहिंसा क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। Excuse me, sir. यस Sir, these questions are from NCERT exemplar. आई डोंट नो, Okay, sir. प्लीज रीड द क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अहिंसा दास। अहिंसा दास, am I audible to you? मयंक साहू कैमरा ऑन क्यों नहीं है? ओजस्वी कैमरा ऑन क्यों नहीं है? उमंग केडिया कैमरा ऑन क्यों नहीं है? झलक बताइए, आप लोग बिना कैमरा ऑन किए कैसे क्लास अटेंड कर रहे हैं? आपको क्या अलग से इनविटेशन दूं मैं कि कैमरा ऑन करिए? While you are in the class, you must on your cameras, okay? Mayank Sahu, read the question. Ahinsa Das, am I audible to you? Okay, Mayank, Ahinsa is not audible. Please, you read the question number 4. Area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r units is. Okay, please explain the question. Sir, so we have a semicircle of radius r. So we have to find the area of the triangle that can be inscribed. Largest triangle. Area Sir, of largest that is. triangle. Yes, sir. Sir, but the largest triangle will, like, there is no largest triangle. Area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle. आपको एरिया निकालना है उस सर्कल का, सॉरी उस ट्राइंगल का जो सेमी सर्कल के अंदर हो। मैक्सिमम एरिया क्या होगा?
ट्रायंगल का। सर जिसका सबसे इक्वल ज्यादा एंगल, बेस बड़ा होगा। देखो बेस तो सेम है, सारे ट्रायंगल के लिए बेस सेम होगा। अब हाइट मैक्सिमम कब आएगी? सर हाइट जब वो सबसे मैक्सिमम टॉप पे होगा। टॉप पे हाँ होगा, सर, मतलब उसकी हाइट क्या होगी? आर होगी। तो क्या आ बनेगा रही ये? है सर। ऐसा कुछ बनेगा। यस सर। बताइए, बेस भी पता है, हाइट भी पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। सर आर Sir, स्क्वायर। half r square. विच ऑप्शन? B. बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नहीं समझ में आ सर, रही? सर बेस तो 2r है ना। आर स्क्वायर आना चाहिए। ये किसने हाँ बताया सर, कि आर बेस आ स्क्वायर। रहे हैं? बेस आ रहे हैं किसने बोला? मयंक, एक तो लेट आते नहीं हो, ऊपर सर, से तुम गलत गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। सर बेस बेस तो 2r है। 2r है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आर स्क्वायर, वही तो ऑप्शन सर, नंबर आर डी। स्क्वायर होगा। Okay, good. Insadas, now am I audible to you? Can you listen me? Can you hear me? नाम तो ये आजा भाई। यस सर। Yeah, please read question number 5. If the Sir, perimeter of a circle is equal to शायद if a इंटरनेट perimeter प्रॉब्लम of हो a रही क्या? circle is ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, ओजस्वी पुरोहित, आप Yes, पढ़िए sir. क्वेश्चन नंबर 5। excuse me, If the sir. parent हाँ बोलिए। Sir, fourth question में 2r कैसे होगा base? बेटा क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर 2r होगा। देखो ये तो r है, ये भी r है, ये भी r है, तो बेस तुम्हारा 2r हो जाएगा, हाइट r हो जाएगा। आया क्या समझ में? सर, हम हाफ डायमीटर को इंटू भी बेस लेके बना सकते हैं या सेक्टर जैसे ही बनना चाहिए वो? नहीं बेटा, ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है। सेमी सर्कल पे ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका एरिया मैक्सिमम हो। अब एरिया मैक्सिमम कब होगा? देखो जितने भी सेमी सर्कल पे ट्रायंगल अच्छा। बनते हैं उनका बेस तो 2r होगा, हम्म, बट हाइट मैक्सिमम कब होगी? जब हाँ। ये यहाँ पे आएगा। अभी समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, ओजस्वी प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 5। if the perimeter of a circle is equal to that of a square, then the ratio of their areas is. क्या, एक्सप्लेन द क्वेश्चन प्लीज। Sir, the perimeter of a circle is equal to the perimeter of the square. So 2 pi r is equal to 4a. वेरी गुड, 2 पाई r इज इक्वल टू 4a। फिर क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ एरियाज निकालने बोल रहे हैं। Yes, sir. ये कैसे निकाला जाए रेशियोज ऑफ एरिया? सवाल यही है। So then we will सर मैं find बताऊं, the value of a. ओजस्वी विल आंसर। So we will find the value of a and then we will. देखिए, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या करना है बस ये बताइए ओजस्वी, क्या ऐसा करें कि ये रेशियो निकल सकता है? व्हाट टू डू, जस्ट टेल मी दैट की पॉइंट। सर एरिया की हाँ, ए की वैल्यू निकाल करके फिर उसमें पुट कर देंगे ए इन टर्म्स square ऑफ में। आर निकाल सकते हैं। वेरी गुड, यू हैव टू फाइंड ए इन टर्म्स ऑफ आर, यही बोल रहे हो आप? यस सर। चलिए रख दीजिए, क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4। क्लियर है क्या? व्हाट इज द ऑप्शन? 4 पाई, 4 by pi? What is 4 by pi? So 14 by 11. 14 by 11 is the right option. Option number B is correct. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Okay, अभी पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधेश अग्रवाल, प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 6। Yes, sir. It is true. सर हाँ Excuse me, sir. मयंक, बोलिए मयंक। सर फिफ्थ का 11/14 होगा ना कि सर्कल सर्कल बड़ा होता स्क्वायर है करेंगे तो सर्कल का एरिया बड़ा होता है और एरिया
स्क्वायर का एरिया छोटा होता है, ये हमने देखा भी अभी थोड़ी देर पहले, इसके पहले की एग्जांपल देखा ना, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, समझ में आ रहा है? तो जैसा रेशियो लिया बेटा वैसे ही सॉल्व किया, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, ए को रिप्लेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्ट। समझ में आ गया? ओके, अब प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 6 and explain it. Yes, sir. It is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of areas of two circular parks of diameter 16 meters and 12 meters in a locality. The radius of the new park will be. Okay, explain the question. Sir, in this question, it is talking about three circular parks with radius, one with the radius r and the other two with the radius 16, that is equal to r1, and 12, that is equal to r2. क्या Sorry, करना the चाहिए? diameter. Diameter first ये we मतलब convert the diameter. radius will be half, है ना? Radius तो pi half हो r जाएगा. square, Yes, sir. pi r square लगा दीजिए। हाफ, ये सही लिखा है फॉर्मूला? नहीं No, सर, sir. Sir, pi 8 square होगा. हाँ, पहला वाला. 16 का half 8 होता है. 8 होगा, अभी सही लिखा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्या होता है? 10 स्क्वायर होता है क्या? Yes, sir. होता है ना? पाइथागोरस ट्रिपलेट Yes, sir. है। आंसर क्या होना चाहिए सॉल्व सिंपलीफाई करने के बाद? Sir, r equals to 10 meters. हाँ, आपको पता है पाई क्या होता है? आर रेडियस पूछ रहा है कि इसका एरिया पूछ रहा है, रेडियस ऑफ न्यू वुड बी, तो एक सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया और कुछ नहीं, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है, इसके पहले एक पहला क्वेश्चन था, ये आपने पढ़ा, ये समझ में आ रहा है? ये वही क्वेश्चन है ना? क्लियर है क्या? ओके, नाइशा, यू रीड द एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7. The area of the circle that can be inscribed in a square of side 6 centimeter is. Side is 6 centimeter. Inscribed area of the circle that can be inscribed in a square. Inscribed का मतलब होता है कि इसके अंदर जो है वो डायग्राम जो है इसके अंदर बनेगा। तो डायग्राम कैसे बनेगा सर्कल का? सर्कल का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये समझ में आ रहा है? अभी बताओ कि सर्कल का डायमीटर कितना होगा? सर 6 सेंटीमीटर। बताइए, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा, पाई 3 स्क्वायर। सिंपलीफाई करने से 9 पाई। 9 pi. हाँ, 9 pi is the correct. 9 pi centimeters. Okay, Kartika, Dinesh, you read question number 8. The area of the square that can be inscribed in a circle of radius 10 centimeter is. Not 10 centimeter, 8 centimeters given. 8 centimeter, sorry. Oh, area of area, there is a circle given to you and there is a another shape which is inscribed in the circle, that is a square. ये समझ में आ रहा है क्या? सर्कल के अंदर में क्या है? Square. सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो बताओ सर्कल का डायमीटर, सॉरी स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा कार्तिका? 16. 16 होगा, वेरी गुड। तो आप डायगोनल के लिए फॉर्मूला पता है आपको? स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? स्क्वायर का डायगोनल होता है, अगर ये ए है तो a रूट 2 होता है। सो व्हाट इज a रूट 2? a रूट 2 क्या आ रहा है? सारे लोग बताइए। सर 16। a रूट 2 कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ रही है? सर 16 by root 2, 8 root 2। एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा 16/16 डिवाइडेड बाय 2। 8. विच ऑप्शन? 728. ऑप्शन बी। B. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है Yes, बेटा sir. सारे लोग? ओके, नाउ मयंक, यू रीड द क्वेश्चन नंबर 9.
The radius of a circle whose the radius of a circle whose circumference is equal to the sum of circumferences of two circles of diameters 36 centimeter and 26 centimeter 20 centimeter. चलिए क्या करना है बताइए. 2 पाई r की वैल्यू हो जाएगी 18, देन 2 पाई एक और r की वैल्यू हो जाएगी 10. ये समझ में आ गया? आंसर क्या है? कुछ समझ नहीं आया क्या आपको. नहीं आ रहा है? सर 2r होगा ना सर. 2r 36 होगा ना. ओ सॉरी नहीं, क्यों 2r 36 होगा? हाँ तो ठीक है ना. r सर 16 r डायमीटर है तो हाँ, ठीक है ना. रेडियस तो 18 लिखा है ना यार. प्रॉब्लम क्या है? कहाँ दिक्कत कहाँ हो रही है? हाँ अभी थोड़ी देर पहले ना दो सर्कल के सर्कमफेरेंस को ऐड करें तो क्या चीज ऐड होगा? उनका रेडियस ऐड होगा. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें. बताइए क्या एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन पढ़ के समझिए पहले. बताइए क्वेश्चन क्या लिखा है. कार्तिका आपको समझ में आया? कार्तिका, एनीवन प्लीज एक्सप्लेन. आ गया? यस सर. देखो सर्कमफेरेंस का सम, रेडियस ऑफ दैट सर्कल आपको निकालना है, जिसका जो सम है circumference is equal to the sum of the circumferences of two different circles. डायमीटर दिया हुआ है, मैंने हाफ करके रेडियस दिया. यही हुआ ना circumference of the bigger circle. सर इसमें 2 pi r1 plus 2 pi r2 equal to 2 pi r है. हाँ बेटा 2 pi r plus 2 pi r ना. देखो 2 pi r1 plus 2 pi r2 यही तो किया है, which is equal to 2 pi r. तो रिलेशन क्या निकला था? r is equal to r1 plus r2 निकला था ना. 1 plus r2. सर्कमफ्रेंस की कंडीशन में ये फॉर्मूला बनता है. और अगर एरिया का कंडीशन हो तो आपने देखा r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर होता है. ये होता था. ये समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. Okay, now let's see the question number 10, last question of the MCQ. Naisha, would you like to read the question? Yes, sir. The diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of the two circles of radii 24 centimeter and 7 centimeter is. मैं जो लिख रहा हूँ वो सारे लोगों को समझ में आ रहा है क्या? The answer is 50. मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है आप लोगों को? Yes sir, 50. क्लियर है क्या बेटा? बहुत सिंपल है. जो क्वेश्चन हमने पढ़े बिल्कुल जो आपने कंसेप्ट स्टार्टिंग में पढ़े थे, मेन कंसेप्ट, वो सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है. ये समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. ओके फाइन. मेरे ख्याल से आप लोगों की क्लास 240 तक होती है ना? Yes sir. मैं आप लोगों को वर्कशीट भेज रहा हूँ. वर्कशीट के क्वेश्चंस जो हैं वो आप मुझे नेक्स्ट वीक जब क्लास होगी तब तक आप मुझे बना के भेजिएगा. ओके सर कैसे भेजना है? गूगल क्लासरूम में? नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, जो एनटीएससी का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, वहां पे मैं आप लोगों को वर्कशीट भेजूंगा. आप लोग वहीं पे सोल्यूशन भेज दीजिएगा, पीडीएफ फाइल स्कैन करके. थैंक यू, बाय बाय. यस सर. Yes sir. थैंक यू Thank you सर. sir. Thank you, sir.